न्यूट्रिएंट्स को, अगर हम इन न्यूट्रिएंट्स को, हाँ पिछले वीडियो में भी ऐसा ही हो जाता है सेविंग, इसलिए पार्ट्स करके मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आने वाला है डेफिशिएंसी डिजीज से। तो अगर इन न्यूट्रिएंट्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा कुक करेंगे तो इसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे, धुल जाएंगे वो। नाउ मैनी रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सम vitamins. The skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamin and mineral present in them. We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. Cooking. The taste of food and makes it easier to digest. At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and it's then thrown away. अब इसमें देखिए क्या है, जो कुकिंग जो होती है ये खाने को डाइजेस्ट करने में ईजियर करती है, लेकिन अगर हम एक्सेस कर दें कुकिंग में तो फिर मतलब अगर किसी हम फूड आइटम को ज़्यादा ही कुक कर ले तो फिर उसमें से न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं. नाउ विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग. Would it does not be sensible to include some fruits and raw vegetable in our diet? Bhujo thought that fats would be the best food to eat all the time. A katori of fat will give much more energy than a katori of carbohydrate rich food, isn't it? So he ate nothing but food rich in snacks. Fried food like samosa and puri, snacks, malai, rabdi and peda sweets. Do you think he was right? No, of course not. It can be very harmful for us to eat too much of fat rich foods, and we may end up suffering from a condition called obesity. अब है विटामिन सी तो देखिए जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर हम उसे ज़्यादा देर तक हीट में रखें. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. अब है जो भूजो है उसने सोचा कि मुझे ज़्यादा ताकत चाहिए, तो मुझे लगता है कि फ़ैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है, तो मुझे फ़ैट्स बहुत लेना चाहिए, एक्सेस कर देना चाहिए. उसके बाद उसने इतना फ़ैट लिया कटोरी से भी ज़्यादा, जैसे कि उसने फ्राइड फूड खाए बहुत ज़्यादा, समोसा, पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सब उसने इतना खाया कि उसको एक ओबेसिटी नामक बीमारी हो गई. अब ओबेसिटी जो है वो एक बीमारी है. अगर हम फैट एक्सेस ले लेते हैं तो एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है ओबेसिटी. ये आपको याद रखना है, ये बहुत काम का है. तो जो भूजो है ये बच्चा, इसने इतना ज़्यादा फैट खाया ना कि इसको ओबेसिटी हो गया, मतलब एक्सेस हो गया फैट का. आप कुछ डेफिशिएंसी डिजीज़ेस देख लेते हैं. डेफिशिएंसी डिजीज़ेस मतलब क्या होता है, जब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स वो मतलब हम जब एक ही न्यूट्रिएंट में ध्यान देते हैं और सब न्यूट्रिएंट्स हम खाना ही भूल जाते हैं, तो उन न्यूट्रिएंट्स से होने वाली बीमारी को हम डेफिशिएंसी डिजीज़ेस या डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स बोलते हैं. अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. Deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorders in our body. Diseases that occur
due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases. If a person does not get enough proteins in his or her food for a long time, he or she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases, and diarrhea. If the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop completely. Such a person becomes very lean and thin and so weak that he or she may not even be able to move. Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. Some of these are mentioned in table 2.3. All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. In this chapter, we ask ourselves this reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensures that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body. अब ये वाला देखिए, इसमें ये बताया है कि जो फूड अगर हम एक से अगर हमको किसी भी न्यूट्रिएंट या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई तो हमें क्या हो सकता है, हमें जैसे कई तरह की बीमारियां हो सकती है, जैसे कि डिसकलरेशन ऑफ हेयर हो सकता है, स्किन डिजीजेस, डायरिया, ये सब हमारे अंदर हो सकता है। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अगर हमको इन दोनों की कमी हो गई तो हमारी जो ग्रोथ है वो कम्प्लीटली रुक जाएगी और वो पर्सन हो सकता है वो लीन हो जाए, थिन हो जाए, वीक हो जाए और हो सकता है वो चल फिर भी ना पाए। और वैसे विटामिन और मिनरल्स की जब डेफिशिएंसी हो जाती है उससे भी कई तरह के डिजीज़ेज और डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और कुछ एग्जांपल्स इसके 2.3 जो टेबल है वो उसमें दिए हुए हैं, हम उसे देखते हैं। चलिए, अब ये हमको ध्यान से देखना है। तो ये है विटामिन, मिनरल, ये सब जो हैं इनकी डेफिशिएंसी से होने वाली ये सारे जब न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे तो नहीं हैं, फिर उनके डिसऑर्डर्स और डेफिशिएंसी डिजीज़ेस हैं, फिर उनके सिम्टम्स इधर लिखे हुए हैं क्या है। तो विटामिन या फिर मिनरल की विटामिन या फिर मिनरल लिख लेते हैं, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन। तो विटामिन ए से होने वाली बीमारी विटामिन ए को ना लेने से विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी को हम लॉस ऑफ विजन कहते हैं, जिसमें पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, उसमें हम एकदम ब्लाइंड हो जाते हैं, उसमें हम डार्कनेस में कुछ भी नहीं देख पाते हैं, कुछ भी कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है हमारा। उसके बाद है विटामिन B1 जो है इट इज़ कॉज्ड बाय बेरीबेरी। विटामिन B1 से होने वाली बीमारी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी को हम बेरीबेरी बोलते हैं। बेरीबेरी के सिम्टम्स है वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। तो बेरीबेरी में हमारे जो मसल्स होते हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं और एनर्जी भी नहीं बचती। विटामिन सी में की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी को हम स्कर्वी कहते हैं। उसके सिम्टम्स हैं ब्लीडिंग गम्स, वूंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, दांतों में से बहुत खून आता है, बहुत ब्लड आता है और वूंड्स भी टाइम लेते हैं ठीक होने में। विटामिन डी में रिकेट्स, विटामिन डी से होने वाली विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी को हम रिकेट्स कहते हैं। इसके सिम्टम्स हैं बोन्स कम सॉफ्ट एंड बेंट, आपने कई बूढ़े लोगों को, बुज़ुर्ग लोगों को देखा होगा कोई झुके हुए होते हैं, क्यों? उनको किसकी ज़रूरत होती है? विटामिन डी की। विटामिन डी की जो होता है
उसकी कमी बुज़ुर्ग लोगों को काफ़ी होती है और हमें प्रोटीन की कमी हो सकती है, जो कि अभी लेकिन इसमें दे नहीं रखा है। तो विटामिन डी से होने वाली बीमारी को रिकेट्स कहते हैं, जिसमें बोन्स जो है हमारी वो बेंट हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है या फिर बेंट हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं है सिर्फ बुज़ुर्ग लोगों को, किसी को भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो होती है वो बुज़ुर्गों को ही होती है। अब जो कैल्शियम है, कैल्शियम से होने वाली डिजीज़ को हम कहते हैं, मतलब कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होने वाली कैल्शियम डेफिशिएंसी डिजीज़ है बोन एंड टूथ डिके। इसके सिम्टम्स हैं वीक बोन्स, टूथ डिके, मतलब इसमें दांतों में दर्द होता है और बोन्स वीक हो जाती हैं। और आयोडीन से की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी हम गॉइटर नाम से बुलाते हैं। इसके जो सिम्टम्स है वो ये हैं ग्लैंड्स इन दी अपीयर स्वॉलन, मतलब जो नेक होते हैं उनमें स्वॉलन सा आ जाता है और बच्चों में कई बार मेंटल डिसेबिलिटी भी आ जाती है। एंड ऑल्सो मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। उसके बाद आयरन है, आयरन की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी को हम एनीमिया बुलाते हैं। इसका सिम्टम वीकनेस है, जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में, मतलब पिछले नहीं, 5th क्लास में भी पढ़ा होगा कि ये क्या होता है। देखिए हीमोग्लोबिन, जो आयरन की कमी, जब हीमोग्लोबिन कम होता है तो डॉक्टर प्रेफर करते हैं ना कि आयरन लो। आयरन हमको ज़्यादातर रेड जो भी चीज़ें होती हैं उनमें मिलता है, जैसे कि बीटरूट, कैरेट, टोमेटो, इन सब में हमें ज़्यादा मिलता है क्योंकि ये हमारे अंदर का खून बढ़ाते हैं। तो आज के लिए इतना ही सिर्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने कई पार्ट्स में डिवाइड कर दी वीडियो, क्योंकि जो फ़ोन है उसमें वीडियोस बार बार हटे जा रहे थे। एक बार बस हम इसकी समरी पढ़ लेते हैं। समरी में बस इतना ही है दैट द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर। Carbohydrates and fat mainly provide energy to our food. Protein and mineral are needed for growth and maintenance of our body. Vitamin help in protecting our body against diseases. Balanced diet provides all the nutrients that our body needs in right quantities, along with adequate amount of roughage and water. Deficiency of one or more nutrients in our food for a long time may cause certain diseases or disorders. अब हम अगले चैप्टर में क्या लाएंगे, अगले चैप्टर नहीं, इसी चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, एंड फिर हम नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। थैंक यू।